Okay, so now we are going to start a mock interview for HPCL. Mr. Jitendra, first of all, you tell us about yourself. Good morning, sir. I am Jitendra Kumar Yadav. I belongs to Jaipur, Rajasthan. I did my graduation in mechanical engineering from Swami Keshwanand Institute of Technology, Jaipur. And I would also like to share that my college has scored highest in the quality index value ranking from the past 5 years among all the universities and colleges under the Rajasthan Technical University. Talking about my family, sir, my father is self-employed and he is the most hardworking and the objective person that I have ever seen in my life. My mother is a homemaker and she cooks an excellent food. So I am professionally skilled person having the 3.5 years of experience in both the coal-based thermal power plants and the gas-based thermal power plants. So right after my graduation, I joined Adani Power and worked there for 2.5 years. And from the last 1 year, sir, I am working with the Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited in a gas-based power plants. So the various roles and responsibilities that I look afterwards is the execution of preventive, predictive, and shutdown maintenance of HP and LP bypass system, that is high pressure and low pressure bypass systems, the turbine valves, the oil purification system, centrifuge devices, and other turbine auxiliaries. Apart from them, sir, I also looks for the contract managements, which involves the manpower managements, the bills, the planning, ए डे अहेड ऑफ प्लानिंग, मतलब सर आगे अगले दिन क्या काम करना है उन सबकी प्लानिंग सुपरवाइजर के साथ बैठ करके करना. एंड आई एम आल्सो मेकिंग द मंथली, द क्वार्टरली एंड द एनुअल रिपोर्ट्स लाइक द SHRM, ORM, and then consumption reports that is made once in 3 months, and the workshop reports. So this is all about me, sir. So you are doing a lot of responsibilities there, no? Yes, sir. Okay, and your job is under state government, right? Yes, sir. I am working with the autonomous body under the state government. Okay, then, and we know that power plant jobs are very good jobs Yes, sir. in terms of good earning. Yes, sir. Definitely. So then why do you want to change your job now? Sir, apart from other organization, HPCL offers me some other things, and few among them, just like, sir, the diversities in job profile. I have seen people, sir, working there in the thermal sector. They used to in order to make some diversities in their jobs, they used to switch the jobs. And so there are other no such switching the jobs. It will bring something, some other sides into this also. And second thing, sir, is that the salary and the prestige which is associated with HPCL is, sir, there is no match with that. Third thing, sir, is the employee development in the various Maharatnas and the Navratnas that I basically miss into this the state autonomous bodies and the private sector also. I have seen, sir, people who used to give training, who used to come into our plants to give training to us. There are some of almost all of them are associated with the Maharatnas or some high CPECs. So I seen that, sir, they are having the excellent leadership skills and communication skills, behavior skills, and technical skills is a level above, sir, than us. So this also brings motivates me to join some big organization like the HPCL. And one another point, sir, I would like to mention here that there is basically a transparency in the promotion policies in the PSUs like HPCL. A person who joins a junior level, they can reach up to the higher management. While in the other sectors, we see that because of later recruitments, there are the person who directly joins some private organization at the manager level itself. But in the PSUs, this case is very low. So there is a growth, employee growth more there in the PSUs. So what you have decided as a long-term career objective for yourself? Sir, for the long-term career objective, I would like to, whatever the skills that I have learned, utilize my skills for the growth of the organizations and to gain some senior position into that organization itself.
Okay. Now you describe yourself in 3 words. Yes, sir. Sorry, sir. Describe yourself in 3 words. Okay, 3 words. Sir, Yeah. while working for the past few years in the industry, I found, sir, that I am a team player. And I am, second thing, sir, I am dedicated. And third thing, sir, is that is the honesty, or we can say it is a integrity. And now tell us about your strengths. Okay, sir, talking about my strength, so I believe, sir, my first strength is dedication. And second is a team player having the advanced Excel skills of the Excel, manpower management, and these are the ways strength that I, sir, have, sir. That might be useful in my career at HPCL. Okay. So do you use any daily wage person using this Manrega scheme? No, sir. Actually, I haven't meet such people which are involved in the Manrega. But do you know something about this scheme? Sir, very little, and this is only that it's a सोशल सिक्योरिटी स्कीम एक गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई कि हर एक आदमी को 1 साल के अंदर 100 दिन का एक जो है एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में उनको एम्प्लॉय किया जाएगा वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर जस्ट लाइक रोड मेकिंग एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. So why don't you use people through this scheme? Sorry, sir. In your organization, why don't you use people under this scheme Okay. to give employment to them? Sir, working Okay. into these industries actually require a particular set of skill sets like the rigor, fitters, and also there are some safety standards that we need to maintain the sites. So a person having the required skill set is that can all be utilized in the industry, sir. This is the first challenge that we face. Okay. Now tell me about your hobbies also. Hobbies. Yes. Yes. So I would like to watch the USCSB, United States Chemical Safety Board investigation reports, into which they used to tell about the various incident, the various sequence of incident that happened and that eventually led to an accident. And second, sir, I would like to read the Hindi fiction, is novels of by Premchand. And I also like cooking. Actually, sir, it starts with the requirement, and then I came to know that I also start liking it. So, what was the most popular story by Munshi Premchand? So there are various novels, just like Gaban and Do Bailon Ki Katha, that we have mostly us know about that. We have read into the Hindi books. Gaban has then. So, you watch these US based some documentary, we can say, right? Yes, sir, investigation reports. So, have you watched any documentary related to any incident happened in India? No, sir. Actually, they make the investigation report mostly upon the industry which are basically in the United States. Okay. Any major incident which you remember happened in India? Matching with that kind of stories that you watch there? सर एक एरोप्लेन जो हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन जो डायरेक्टली अभी हुआ, जो कि हमने देखा कि इंडियन से एक फ्लाइट गई थी नेपाल, एंड देन जो एरोप्लेन का जो क्रैश हुआ था उस पे एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स मैंने सर रिसेंटली देखी है. इंडियन पर्सपेक्टिव से ही बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस से सर मैंने काफी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स देखी है और उनके बारे में इफ यू वांट देन आई कैन शेयर वन इन्वेस्टिगेशन. Can you tell me about what type of fuel do we use in aeroplanes? सर जेट फ्यूल होता है. Jet fuel. यस सर, एक हाई ग्रेड होता है सर पेट्रोलियम का ही. Does HPCL make such fuels? Yes, sir. Yes, HPCL produces such fuels. Okay. Now tell me, you are from power plant background, right? Yes. Do you know something about supercritical boiler?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, what is that? Actually, sir, the working fluid that we are using in the boiler is the water. Now, sir, water being a substance is having a critical state, and that critical state is 221 bar pressure at a temperature of 647 Kelvin. Now, sir, what is the critical state? That again it comes a question in our mind. So, critical state is a point where the enthalpy of vaporization reduces to zero, and that leads to 0 degree of freedom. Now, sir, why it is more important for us? So, it is because the water is having the sensible heating and the latent heating. Now, sir, the latent heating of water is very much high as compared to that of sensible heating. So what we want to practice is we want to reduce the latent heating. हमें कम से कम latent heating सप्लाई करनी पड़े तो कम से कम हीट सप्लाई करके हम ज्यादा पावर जनरेट कर पाएंगे. Now सर इसके लिए हमने क्या किया सर, हमने as we seen from the Rankine cycle, जो सर can I draw? You want to draw Rankine cycle? सर रैंकाइन साइकिल में एक्चुअली आई वांट टू शो कि लेटेंट हीटिंग का क्या पार्ट पोर्शन होता है और सेंसिबल हीटिंग का क्या पोर्शन होता है और किस तरीके से लेटेंट हीटिंग कम होती जाती है विद इंक्रीज इन. You explain verbally only, you explain, Jitendra. ओके ओके सर, ओके. तो सर विद इंक्रीज द प्रेशर एक्चुअली द लेटेंट हीटिंग रिड्यूसेस. वो क्यों? सर वो बिहेवियर है सर, एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स रैंकाइन साइकिल में जो डोम रहता है तो जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लेटेंट हीटिंग जो है सर वो अल्टीमेटली रिड्यूस होती जाएगी. बिकॉज उसका एक और रीजन है सर, साइंटिफिक रीजन इज आल्सो देयर कि जैसे हम फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो फ्लूइड सर पास में आते हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोर्स लगता है बिकॉज वो तो उनको एक तरीके से वेपराइज होने के लिए जो है और भी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. तो सर फ्लूइड जो है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉईल हो जाना चाहिए था वो डिले होती है बॉइलिंग उसकी. और जब बहुत ज्यादा डिले होती है तो एक पर्टिकुलर एक जब क्रिटिकल पॉइंट पे या फिर जितना हाई प्रेशर अपन रखेंगे तो पॉइंट पे आने के बाद सर फ्लूइड सडनली फ्लैश ऑफ इनटू वेपर्स. तो उस केस के अंदर सर हमारी जो लेटेंट हीटिंग है वो कम हो जाती है और वी हैव सीन सेंसिबल हीटिंग जिसकी वैल्यू ऑलरेडी कम है वो थोड़ा बहुत बढ़ती है, बट सर उसकी एक्चुअली सेंसिबल हीटिंग की वैल्यू ही बहुत कम होती है. तो इस तरीके से सर एक्चुअली और हमने एक प्रॉफिट गेन किया है कि हमने कम हीट सप्लाई करके ज्यादा वर्क आउटपुट अपन गेन कर सकते हैं. तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स में सर यही होता है कि उनमें प्रेशर अबाउट 221 डिग्री सेंटीग्रेड 221 बार मेंटेन किया जाता है. जस्ट साइज लाइक किसका बड़ा होता है जितेंद्र, सुपर क्रिटिकल बॉयलर या सब क्रिटिकल बॉयलर? सर साइज के बारे में सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर एक्चुअली सर. देखिए अगर प्रेशर ज्यादा है तो स्पेस कम यूज करेगा वेपर या ज्यादा? डेफिनेटली सर कम यूज करेगा. हाँ, तो फिर साइज का पता लग जाएगा आपको वहां से. यस यस. मेरे को ये बताइए कि आप रैंकाइन साइकिल को अगर रिवर्स कर दें तो क्या बनेगा? मीन सर मैं यदि अगर रैंकाइन साइकिल को रिवर्स मतलब सर प्रोसेस वाइज रिवर्स करना चाहते हैं कि आप इस तरीके से मूव करो. एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए उसको तो क्या मिलेगा तुम्हें? सर एक रेफ्रिजरेशन साइकिल मिल सकती है सर उसके साथ मुझे. कौन सी वाली? सर बीइंग वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन कितना होता है? वाटर का सर 2100 एंड सम 58 अराउंड होता है सर किलो जूल पर केजी. ये फिक्स है क्या? लेटेंट हीट एवेपोरेशन नहीं सर, फिक्स नहीं है. दैट इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है सर, जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे वो कम होता जाएगा. अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं? सर डिफाइन मीन्स सर क्या बोलना चाहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट जानते हैं क्या होता है? हाँ सर हाँ. कैसे बताएंगे उसको, किसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर क्रिटिकल पॉइंट हैविंग द 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ए पॉइंट वेयर द एंथैल्पी वेयर द बोथ द हाँ, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है सर. तो ट्रिपल पॉइंट पे कितना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम हम्म, ट्रिपल पॉइंट पे सर वाटर केस में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. ओके. और क्रिटिकल पॉइंट पे टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? सर प्रेशर अगर 221 बार रहता है और जो टेम्परेचर होता है सर वो हमारा 647 केल्विन होता है. अगर मैं उसके ऊपर चला जाऊं तो कौन सा फेज होता है क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर? सुपर हीटेड फेज में चले जाते हैं सर फिर. वो सुपर हीटेड फेज ही रहता है. यस सर. नो ट्रांजिशन. सर वहां पे ट्रांजिशन विजिबल नहीं होता सर, वो डायरेक्टली लिक्विड जो फ्लैश ऑफ वेपर्स में हो जाता है. आपने तो जॉब किसमें की है जितेंद्र? सर पावर प्लांट्स में और रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सर मेरी वॉल मेंटेनेंस और ऑयल प्यूरिफिकेशन सिस्टम, सेंट्रीफ्यूज और द टर्बाइन ऑक्सिलरीज. तो आप एफिशिएंसी निकालते थे पावर प्लांट का जहां आपने वर्क किया है? नहीं सर, एफिशिएंसी एक्चुअली पीई एंड ई डिपार्टमेंट होता है सर, वो निकालते हैं. बट आई एम आपका काम मेंटेनेंस होता था, राइट? सॉरी सर. आपका काम मेंटेनेंस का था. यस सर, मेंटेनेंस. उसमें क्या देखते थे आप?
मेंटेनेंस में सर वॉल मेंटेनेंस देखता था, HPLP बाईपास सिस्टम एंड ऑयल प्यूरिफिकेशन सिस्टम। ऑयल प्यूरिफिकेशन सिस्टम में क्या देखते थे आप? ऑयल प्यूरिफिकेशन सिस्टम में सर प्यूरिफिकेशन डिवाइस होता है, सेंट्रीफ्यूज, फिल्टर्स, इन्हीं हम्म, का मेंटेनेंस। तो ऑयल को कितने दिनों के बाद रिप्लेस करना पड़ जाता है, कितने उसके बाद, यूज के बाद? सर उसके लिए हम एक मंथली सर रिपोर्ट बनवाते हैं, एक टेस्टिंग करवाते हैं सर एक्चुअली, और ऑन द बेसिस रिपोर्ट्स वो डिसाइड करते हैं। यदि अगर रनिंग ऑयल है तो सर डेफिनेटली, यदि हम एक गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं, यदि वियर एंड टियर मशीन का कम है, हम्म, टेम्परेचर विद इन कंट्रोल है, तो सर हम्म, ऑयल को हमें फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट हम्म। यदि अगर वियर एंड टियर मशीन का ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, हायर टेम्परेचर पे जा रहा है, तो हायर टेम्परेचर पे ऑयल डेटोरेट हो जाता है, ऑयल का जितेंद्र, गाड़ी यूज करते हैं ऑक्सीडेशन। आप? गाड़ी क्या यूज सर? करते हैं, गाड़ी, बाइक, यस सर, कार यूज यस सर, करते हैं? यस हम्म, सर, तो उसमें ऑयल चेंज करना पड़ता है कुछ टाइम के बाद। यस सर, यस सर। वो कैसे पता लगाता है मैकेनिक कि अब ऑयल चेंज करना पड़ेगा? सर उसमें एक तो फिजिकल, जो सिंपल देख करके इन्वेस्टिगेट कर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑयल का जो कलर है सर वो चेंज हो जाता है। सेकेंड हम्म, थिंग सर, ऑयल के अंदर डेब्रिस आना स्टार्ट होता है, जैसे हम ऑयल को हाथ में लेकर रब करते हैं तो वी हमें सेंस होता है कुछ वियर पार्टिकल्स आ चुके हैं, दैट मीन्स उस टाइम सर हम ऑयल को रिप्लेस कर देना चाहिए। और स्मेलिंग? हाँ सर, कुछ ऑयल में ऐसा होता है कि स्मेलिंग भी उसका मतलब अलग तरीके से स्मेल, कुछ रोटन रोटन टाइप स्मेल देना शुरू कर देता है सर ऑयल, तो वहां पे भी वही वो भी सेंस ऑफ इंडिकेटर है सर। जितेंद्र, कितना साल हो गया अभी आपको जॉब करते हुए? सर 3.5 years कंप्लीट हो गए हैं। तो कोई प्रमोशन आपका हुआ इसमें? नहीं सर, अभी कोई प्रमोशन नहीं है सर, राइट नो वर्किंग विद आर्मिनल, तो अभी सर मैं ऑलरेडी प्रोबेशन पीरियड में हूँ, देन 1 साल बाद सर मेरा प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा। हम्म, तो आप ये क्यों छोड़ना चाहते हैं अभी? सर दैट आई हैव, एक बार हाँ, फिर से एक्सप्लेन करूँ सर? यस, अगेन यू टेल मी कि व्हाई यू वांट टू लीव इट एंड जॉइन एचपीसीएल। ओके सर, एक तो डाइवर्सिटी जॉब प्रोफाइल है। हाँ जी। Second thing, sir, the prestige and the salary associated with HPCL is a level above. Is no match with the I am currently living with this. ओके। Third thing, sir, employee development है कि हम्म, सर जो मैंने फेस किया कि जो हमारे यहाँ पे जो सर ट्रेनिंग्स के लिए जो वेरियस पीपल्स आते हैं, हम्म, तो उनसे जब मिला तो उनका मुझे लगा कि सर उनका एक लेवल अबव है इन द टेक्निकल बिहेवियर लीडरशिप स्किल्स में। तो हाँ। वैसी स्किल्स सर विद टाइम मैं भी डेवलप करना चाहता हूँ अपने अंदर। अभी आप राजस्थान में कहाँ पोस्टेड हैं? सर आई एम पोस्टेड इन जैसलमेर, हम्म, गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान। और आपका घर कहाँ है? जयपुर में है सर। तो अभी अगर आपको एचपीसीएल में, तो तमिलनाडु भी पोस्टिंग मिल सकता है, यस सर, यस सर। चले जाएंगे? Yes, definitely, sir. Definitely, sir. Actually, I would also like to see the different colors and cultures of my country for which it is known. कलर तो ठीक है, पर बात कैसे करेंगे वहां जाके? Sir, actually, आजकल टेक्निक्स बहुत आ गई हैं. One of my friends has just recently joined the HPCL and he's posted at the Visakhapatnam. So he also faced the similar situation. बट देन सर उसने टेक्नोलॉजी का यूज किया कि जैसे गूगल ट्रांसलेट होता है सर, उसमें भी और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं सर टाइम के साथ में जो हम सीख जाते हैं। और हम्म, स्पेशली सर वर्किंग की बात करें तो जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं वो ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज के अंदर सेम ही रहती है। जस्ट हम्म, लाइक टर्बाइन, टर्बाइन ही बोलते हैं सर मोस्टली, ऑयल को ऑयल ही कहेंगे। तो इस टाइप की चीजें होती हैं सर, टेक्निकल चीजें जो कि सेम रहती है। हम्म। अच्छा जितेंद्र, राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, और एक सिटी और दूसरी सिटी के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। कई यस सर, ऐसे पेट्रोल पंप होते हैं आइसोलेटेड प्लेसेस पे जहां पे बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं आता, यस सर, यस। तो वहां पे सेल प्रमोट करने का क्या हम ये कर सकते हैं? कुछ आइडियाज दीजिए अगर वहां पे सेल प्रमोट करनी हो हमें। सर जैसे एक तो सर इसमें हम मूव कर सकते हैं कि एलपीजी की तरफ। तो वहां हम्म, पे सर देखते हैं रिमोट लोकेशंस में लोग अब अभी भी सर जो है वुड और इस टाइप की बर्निंग करके अपना यूज कर रहे हैं। तो हम्म, एलपीजी प्रमोट यदि हम करते हैं तो सर उनके लिए भी बेनिफिटेड होगा कि उनको एक क्लीनर फ्यूल अवेलेबल होगा। हम्म, फर्दरमोर सर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं जो कि हम्म, सब्सिडाइज्ड रेट में एलपीजी को लोगों को प्रोवाइड करवा रही हैं। तो हम्म, वहां पे सर जैसे टॉकिंग अबाउट द रामगढ़, सर रामगढ़ इज अगेन 60 किलोमीटर फ्रॉम द जैसलमेर वेयर आई एम पोस्टेड, तो वो एक हम्म, ऑलरेडी रिमोट लोकेशन है। तो हम्म, वहां पे सर एक्चुअली एचपीसीएल इज द ओनली एजेंसी जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं दिस एलपीजी गैस कनेक्शंस। हम्म, एल तो उसका एक ऑलरेडी सर वो एक बहुत बड़े एरिया के अंदर बहुत सारी ढाणियां होती है, गांव होते हैं, तो उनमें ऑलरेडी केवल एक ही सेंटर है, तो उनका सेल बहुत ही ज्यादा है। फर्दर गवर्नमेंट का प्रमोशन स्कीम्स का यूज कर सकते हैं। तीसरा है सर कि आजकल लोग जो ट्रेडिशनल हमारे कम्यूट करने के वे थे, जो कि पैदल जाते थे, बैलगाड़ी पे जाते थे, उनको लोग आजकल धीरे धीरे लीव कर रहे हैं और पीपल आर यूजिंग द बाइक्स, द कार्स। और इस बारे में लोग बात बहुत ज्यादा उसको मतलब ईज ऑफ लाइफ की तरफ मूव कर रहे हैं सर वो, तो वहां पे सर पेट्रोल पंप्स का भी अभी बहुत ज्यादा यूज हुआ है।
वो ट्रेंड इंक्रीज किया है सर। कोई कस्टमर आया है जो 5 लीटर पेट्रोल लेना चाहता है पेट्रोल पंप पे, ओके आप उसको कैसे कन्विंस करोगे 10 लीटर लेने के लिए? ओके सर, दिस इज वेरी हार्ड टास्क। बट सर एक्चुअली मैं उसको बता सकता हूँ कि एक तो सर मैं उसको बता सकता हूँ कि पेट्रोल प्राइसेस जो है आज एज डिसाइडेड ऑन डेली बेसिस पे चेंज होती है। तो उनको बता सकते हैं कि सर यदि कल आप लेने आओ तो हो सकता है पेट्रोल 1 रुपये बढ़ गया होगा। तो आज पेट्रोल की रेट कम है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। सेकंड थिंग सर, उसको हम अनसर्टिनिटीज के स्पेकुलेशन बारे में। नहीं, क्या ये सर? गलत स्पेकुलेशन हो जाएगा। ये सर और स्पेकुलेशन है। दूसरा सर उसके बारे में जो अभी हमारा जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है रिगार्डिंग द एनर्जी, जो जो सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग उसको बता सकते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो क्यों, क्योंकि बिकॉज जो वेरियस क्राइसिस वी हैव सीन सर, रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है तो उसके कारण हमने देखा है सर एनर्जी सप्लाई चेन में काफी डिस्ट्रप्शंस आए हैं। तो उन चीजों के बारे में सर उसको अवेयर कर सकते हैं। ओके, ऑल फ्रॉम माय साइड। त्यागी सर कुछ और पूछना है या फीडबैक दें यादव जी को? यादव जी अपनी फैमिली के बारे में बताओ थोड़ा। सर माय फादर इज सेल्फ एम्प्लॉयड, ही एक्चुअली ओन्स ए आरओ प्लांट, and my mother is a homemaker. And talking about my sister, sir, so he's pursuing the librarian bachelor's in librarian science. So how are your marketing skills? How do you rate on the scale of 10? Sir, it's very hard for me to rate myself on the scale of 10 because I'm never into this marketing side. But if I am trained, then definitely, sir, I would leave no stone unturned. Uh, Currently, sir, I would say it's 5 or 6 के around ही मैं अपने आप को रेटिंग दूंगा। Did your father ever ask you to join his business? No, 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 sir. My father always encouraged me to join some organization. He never encouraged me to join But business. there is good scope of growth in this RO sector because now people are using RO water for drinking, No, definitely, and sir. in There is rural a areas scope. also. Sir, definitely, sir, there is a scope, but there again, sir, there are challenges too. And I have seen the life of my father, sir. Ki the entrepreneurship is not an easy task. So right now, I have never seen about. I have never think about me myself as an entrepreneur. Okay, while working, many of the students prepare for civil services also. Almost everyone, after getting some job, the next target they decide is for say UPSC job. Okay, so do you have any such dream? No, no, sir. I don't have any such dream. I am told about, sir, in my long career objective, I would like to join such organization and improve my skills, and the leadership skills and technical skills, and So definitely grow. when did you start preparing for this in particular interview? Sir, actually, I started around 5th or 10th. I actually start writing about from my journey from the class 9th to 10th, 9th, 10th, 11th and graduation, all this. So 5th से start किया था, then sir मैं बीच में बीमार हो गया था for the 10 days and my interview was scheduled to be on 20th February in the Ahmedabad. But then I write a mail to the HPCL for the postponement, so they postponed it. Okay, so what improvements have been made in your personality or your knowledge, whatever, uh, during this interview preparation? सर इंटरव्यू प्रिपरेशन में तो सर मैं इतना मतलब ऐसे इम्प्रूवमेंट्स तो नहीं बोल सकता है, बट एक थोड़ा सा सर ऐसा है कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा इम्प्रूव हुई है। देन सर वे ऑफ एक्सप्रेशन को मैंने काफी एनालाइज किया अपने आप को बात करके, तो वे ऑफ एक्सप्रेशन को भी सर मैंने देखा कि मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन काफी पहले से इम्प्रूव है। और जो चीजें थी सर बस उनको थोड़ा समराइज किया तो खुद के बारे में थोड़ा और ज्यादा जानने को मिला सर कि मैंने पास्ट में क्या क्या चीजें की हुई है। वो एक तरीके से एक रिवीजन था सर मेरे लिए कि So did you पास्ट में read चीजें the क्या। website of HPCL anytime? यस सर, आई हैव विजिटेड। So how many times? Actually, sir, in the past 1 month, I think 4 to 5 times I have visited there just to And know you about what have read, HPCL you have is. read everything written there? And, sir, I had read most of the things, but I also remember a few of the things also. Last question. Does HPCL import any finished product? Yes, sir. Yeah, definitely, sir. HPCL imports the petrol and other things from the finished products from the other countries also.
in order to meet the domestic demand. Okay. Okay, sir. ओके सो जितेंद्र Okay, ठीक thank है, you, sir. पावर प्लांट का आपका ना 3 साल का एक्सपीरियंस है जितेंद्र, Yes, sir. तो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। ठीक है वो सर। इंट्रिकेट पॉइंट पूछेगा आपसे ना, और आप इंट्रोडक्शन वहीं पे खत्म करना अपने जॉब एक्सपीरियंस पे। ठीक है सर। पूछेगा क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या प्रमोशन मिला है, अच्छा है, ये पब्लिक सेक्टर है ना ये, जो अभी करंटली वर्क कर रहे हैं सर, वो तो हाँ पब्लिक सेक्टर है। तो वो State आपसे मांग रहे हैं, एनओसी मांग रहे हैं, हाँ सर, एनओसी मांग रहे हैं। दे रहे हैं आप? हाँ दे रहे हैं सर। तो वो आपको अच्छे तरीके से थोड़ा रिवाइज कर लेना जितेंद्र। बाकी वो जॉब की तरफ जिन बच्चों का जॉब है ना 2-3 साल से ऊपर, जिन लोगों का है जॉब, उनका जॉब की तरफ ज्यादा वो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। ओके सर। अपनी इंट्रोडक्शन को आप जॉब की तरफ ले ही जाना, और जॉब आगे वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है और उसको वर्कआउट कर लो। तो ये मेरे को लगता है हाई प्रोबेबल एरिया रहेगा आपका क्वेश्चंस का। टेक्निकल सब्जेक्ट भी वही जाएगा, फिर वो जो आपका पावर प्लांट है तो उसमें चला जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स पावर प्लांट में चला जाएगा, हल्का फुल्का पूछ सकता है, वैसे टेक्निकल ज्यादा नहीं पूछ रहा है। ठीक है। जॉब से रिलेटेड पूछ ले रहा है कि क्यों आना चाहते हैं, तो पब्लिक सेक्टर है, कौन है आपके सीएमडी, कौन है, कहाँ पे पोस्टिंग है, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ओके। बाकी ठीक लगा मेरे को। कई जगह पे आप जहाँ पे नहीं आंसर आता है ना, वहां पे अवॉइड कर देना आप। जहाँ पे ठीक कोई चीज का आइडिया नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि शायद आप गलत हो सकते हैं, तो उसको आंसर मत करना कॉन्फिडेंटली, उसको अवॉइड ठीक कर है। देना। ओके सर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जितेंद्र, बाकी ठीक है। हाँ नहीं, परफॉर्मेंस तो अच्छी है तुम्हारी, बोलने का तरीका भी ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है। तो मतलब तुम डिजर्विंग कैंडिडेट्स में अमंग टॉप, अगर 5 हम बोल सकते हैं उसमें हो अभी, जो भी इंटरव्यूज हम लेते हैं, ठीक है। तो चांस है, बस अच्छे तरीके से सारा कल ही इंटरव्यू है, तो ज्यादा टेंशन तो लेने की जरूरत नहीं है उसकी कुछ भी। ओके बट सर। अपने काम को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, जो भी तुमने किया है उससे रिलेटेड, कि अगर कोई तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या पूछेगा, ठीक है। ठीक। जो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन सब के ऊपर एक बार सोच लो बैठ के, क्योंकि ओके। डेफिनेटली वो पूछेंगे वहां से कुछ, ठीक है। जीटी पावर ठीक हो गया प्लांट, तुम्हारा ग्रुप टास्क? हाँ जीटी सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ सर मैं। उसमें थोड़ा सा देख लेना ना। ठीक है। ठीक है। एक सर, एक चीज सर मुझे पूछना था कि सर मुझे अभी रिसेंटली जो है एक अचीवमेंट मिला है सर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, कि 26 जनवरी को सर मेरे को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड अवार्ड मिला है। तो वो सर मुझे मेंशन करना चाहिए क्या वहाँ इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन में कर दो, हाँ बिल्कुल। कर देना चाहिए। ठीक है। और सर दूसरा सर ये है कि जो सर मैं आपने वहां लिखा पहले, है, फॉर्म में लिखा है अपने अचीवमेंट में इसको? हाँ फॉर्म में अचीवमेंट में लिखा है सर। ठीक है। ठीक है। और आगे। दूसरा सर ये कि मैं सर आरबीएनएल में सर अभी मैंने ज्वाइन किया, तो सर मैंने एक्चुअली हाफ ऑफ द सैलरी पे ज्वाइन किया, बिकॉज सर यहाँ पे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। 2 साल के बाद सर यहाँ की जो सैलरी है वो मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी से ज्यादा रहने वाली है, बट अभी सर लो है। तो उसके बारे में सर उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी ना? हाँ सर प्राइवेट थी। हाँ, तो जब आप जॉब गवर्नमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं तो रीजन उसके अलग होते हैं ना, सैलरी रीजन नहीं होता उसका। ठीक है। तो सर क्या गवर्नमेंट के मतलब मेरी वो बेनिफिट्स हैं बात तो करना ये होता, प्रेस्टिजियस जॉब है सर, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत वैल्यू है, प्रेस्टिजियस जॉब्स है, और उसका रिकॉग्निशन एक एसोसिएटेड है, जॉब सेटिस्फेक्शन एसोसिएटेड है, उसके लिए सैलरी क्राइटेरिया नहीं है। मोर ओवर सैलरी मेरे को जितनी मिल रही है सफिशिएंट है सर। ओके। सैलरी के लिए आदमी गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर ज्वाइन नहीं करता, वो तो कई हाँ। बार प्राइवेट से कम होती है, लेकिन यस। उसका रीजन नहीं है ना, रीजन कुछ और होते हैं। एक सर यदि एक क्वेश्चन हो रहा है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द प्राइवेट सेक्टर एंड व्हाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम? प्राइवेट सेक्टर इज वेरी गुड सर, बट एज आई टोल्ड कि मैं वहां से मैं से सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता हूँ, ऐसी जगह से आता हूँ जहां हमारी पूरी फैमिली में बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है इन जॉब्स को, पब्लिक सेक्टर जॉब्स को। और ध्यान रहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए नहीं जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के लिए जा रहे हैं। वो थोड़ा इस चीज को डिफरेंशिएट करता है। पब्लिक सेक्टर कैन बिकम प्राइवेट समटाइम, बट गवर्नमेंट नहीं बनता प्राइवेट। ओके। तो आप पब्लिक सेक्टर जब बोल रहे हैं तो उसको कंफ्यूज ना करें गवर्नमेंट के साथ। अभी ये भी जो आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर जॉब है। यस सर। यस। हाँ, तो उसी तरीके से आप गवर्नमेंट सेक्टर मुंह से वर्ड ना निकाल के पब्लिक सेक्टर की तरफ ही बात रखें, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। ओके। ओके सर, थैंक यू। जितेंद्र, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके ओके, सर। थैंक यू। थैंक यू सर।